چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان واسا کے نادہندہ نکلے ہیں۔ عمران خان کی رہائشگاہ کا پانی اور سیوریج کا بل 3 ماہ سے واجب الادا۔ نیا سال شروع ہونے کے بعد عمران خان نے واسا کا 7200 روپے کا بل ادا نہیں کیا۔ زمان پارک کا بل ادا کرنے کی تاریخ 16 مارچ تھی جو کب کی گزر گئی۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے۔ زین، آگاہ کیجیے گا۔ لاہور کے دیگر واسیوں کی طرح چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائشگاہ کے یوٹیلٹی بل کی ادائیگی کا معاملہ بھی لٹک چکا ہے اور عمران خان کی رہائشگاہ کا پانی اور سیوریج کا بل 3 ماہ سے ادا نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی کہ سال 2023 کا جب سے آغاز ہوا ہے تب سے لے کے ابھی تک زمان پارک میں واقع عمران خان کی رہائشگاہ کا جو پانی کا بل ہے وہ ادا نہیں کیا گیا اور گزشتہ 3 ماہ سے زمان پارک میں پانی کا جو استعمال ہے وہ غیر قانونی طور پر کیا جا رہا ہے۔ واسا کی جانب سے ماہ جنوری، فروری اور مارچ کے بل زمان پارک پر عمران خان کی رہائشگاہ پر ڈیلیور بھی کیے گئے، لیکن سال 2023 میں ماہ جنوری سے ماہ مارچ تک 3 ماہ کے بل ابھی تک ادا نہیں کیے گئے۔ اور جو یہ بلوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق عمران خان کی رہائشگاہ پانی کے بل کی مد میں 7200 روپے کی نادہندہ ہے، جبکہ رہائشگاہ کے جو گزشتہ 2 ماہ کے ایریئرز ہیں وہ 4717 روپے ہیں۔ جو بل کی کاپی سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ واسا کا واٹر اور ایکوا فائر کا بل جمع کروانے کی آخری تاریخ 16 مارچ تھی، لیکن اس 16 مارچ پر بھی یہ بل ادا نہیں کیا گیا۔ اس ضمن میں واسا کی جانب سے ہر ماہ جو نوٹسز ہیں اور جو بل ہیں وہ باقاعدگی سے عمران خان کی رہائشگاہ پر بھیجے جا رہے ہیں، لیکن ان بلوں کی جو ادائیگی ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پا رہی۔ اب واسا انتظامیہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ماہ اپریل کا بل بھی جو عمران خان کی رہائشگاہ پر ڈلیور کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں اس امر کی تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اس بل کو ادا کیا جائے، بصورت دیگر قانونی کارروائی کرتے ہوئے واٹر کنیکشن کو منقطع کر دیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ زین العابدین۔ آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے کھیل وہاب ریاض نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسپیشلی اس ٹورنامنٹ میں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم تھا اور رمضان کا کیونکہ اب آخری اشرا شروع ہو جائے گا 10 دنوں میں، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم کچھ گیمز کو فوکس کر کے ابھی فی الحال کریں اور اگلے 1-2 مہینے میں جو باقی گیمز رہ گئی ان کو ہم لوگ پھر فوکس کریں گے۔ اس کا کچھ آپ کو میں بتاتا جاؤں، ان کی ڈیٹیلز بتاتا جاؤں کہ جو ہمارا بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس ہے، پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جی اس میں 9 ڈویژنز جو ہے وہ شامل ہیں اور اس میں ہر ڈویژن سے 4 میل اور 2 فیمیل جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ حصہ لیں گی اور ان کے ونرز کو، کیونکہ یہ انڈیویجول سنگل اس پہ سیریز ہوگی، ناک آؤٹ سیریز ہوگی اور سنگل کے میچز ہوں گے، تو جیتنے والے کو 2 لاکھ روپیہ اور رنر اپ کو 1 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ اسی طرح کبڈی میں ہم لوگ وننگ ٹیم کو 10 لاکھ کا پرائز منی دے رہے ہیں اور 5 لاکھ جو ہے وہ رنرز اپ کو دیا جا رہا ہے۔ فٹ بال میں ہم لوگ جو ہے وہ 5 لاکھ، 3 لاکھ اور 2 لاکھ پہ ہم لوگوں کا ہے کہ فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ پوزیشن میں۔ ٹیبل کیونکہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، یہ ایک روایت ہے رمضان میں، تو ہم اس کو 1,50,000 اور 25,000 پہ لے کے گئے۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس پہ ہماری بات ہوئی ہے، جب ہم سارے بیٹھے اور ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگ ہاکی کو ریوائیو کریں، اور آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ہم اپنے جتنے بھی ہاکی پلیئرز ہیں پنجاب کے ان کو بلائیں اور ایک ایسا ٹورنامنٹ کروائیں جو کہ ایک تو یادگار ہو اور ان لڑکوں کے لیے بہت آگے آنے والے وقتوں میں کھیلنے کے اعتبار سے بھی اور فائنینشلی اعتبار سے بھی کافی ان کے لیے پروفیٹیبل ہو۔ تو جی جو ہاکی کے ہمارے انعام ہے وہ 25 لاکھ روپیہ وننگ ٹیم کو مل رہا ہے اور 15 لاکھ روپیہ لوزنگ ٹیم کو مل رہا ہے۔ اس میں ہم نے تھوڑا سا اس کو اور بہتر بنانے کے لیے، تھوڑا اور انٹرٹیننگ بنانے کے لیے اس کے کچھ رولز چینج کیے ہیں۔ یہ 16 کا اسکواڈ ہی ہوگا، لیکن یہ 2 حصوں میں کھیلا جائے گا۔ ہاف 1 جو ہے وہ 20 منٹ کا ہوگا اور ہاف 2 بھی 20 منٹ کا ہوگا۔ اس میں جو چینجز ہے یہ 8 سائڈ ہوگی اور جو پہلے 8 لڑکے کھیل جائیں گے ایک ہاف میں، وہ دوسرے ہاف میں 8 لڑکے نہیں کھیلیں گے، جو بینچ پہ بیٹھے ہوں گے وہ 8 لڑکے کھیلیں گے۔ نو سبسٹیٹیوشن، اگر کوئی انجرڈ ہو جاتا ہے تو نو ریپلیسمنٹ۔ اور فٹ بال کے بھی ہم نے اسی طریقے سے اس کو، ہم فٹ بال کا بھی جو ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کروا رہے ہیں۔ سو یہ جی ہمارا آغاز ہے اور اس کے بعد اب آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ کریں۔ کمشنر صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈی جی اسپورٹس صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا جو سوال ہے، جو آپ کی ہیں وہ پلیز آپ ہم سے کویشچن کر سکتے ہیں۔
पंजाब उसको फंडिंग करता है, तो उसमें लीग के हवाले से आपने कुछ इदारों से ताल्लुक लिया? देखिए बिल्कुल मेरा ख्याल है इसका जवाब कमिश्नर साहब देंगे, अली रंधावा साहब देंगे, क्योंकि ये हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि हम इस प्रपोज़ल को सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा मैं कर दूं कि हम इस प्रपोज़ल को ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब बोर्ड की हद तक ना लेकर आएँ, हम इसमें स्पॉन्सरशिप्स लेकर आएँ, हम इसमें लोगों को मुतवज्जा करें। बाकी अली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को पता है कि हमने एक लाहौर के अंदर बड़ा सक्सेसफुल जश्न बहारा किया, और जश्न बहारा के अंदर हमने सारे जो इवेंट्स किए वो बेसिकली हम इसमें स्पॉन्सर्ड बेस्ड इवेंट्स किए, और हमने इसमें जो हमारा मेन थीम था वो ये था कि हमने पंजाब गवर्नमेंट से उसमें कोई पैसे नहीं लिए। और आपके सामने ही है कि पूरे लाहौर जो सज धज के साथ हुआ, जगह जगह पे डिफरेंट मेले ठेले लगाए गए। इसमें भी हमें ये टास्क दिया गया है कि हम ये तमाम की तमाम जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हमारी बेसिकली यूथ को आप एक हेल्दी और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर लेके आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का ये विजन था, मिनिस्टर साहब ने इसको रोल आउट किया है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स को लेकर चल रहा है। उसमें हमारा ये है कि हमने स्पॉन्सर्स के साथ एक मीटिंग हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरा का पूरा इवेंट जो है इस पर भी पंजाब गवर्नमेंट को कोई पैसे इसमें खर्च ना हो, और बिल्कुल इसका स्टैंडर्ड एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड हम मेंटेन करें, और तमाम जो इवेंट है वो पूरा का पूरा जो है वो स्पॉन्सर्ड बेस्ड किया जाए, और सरकार के इसमें पैसे ना खर्च हों, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। वहाँ ख़वातीन की तादाद जो है वो पाकिस्तान में 51% है। अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान में उनको ना नज़रअंदाज किया जाता है, जैसे कि यहाँ भी लग रहा है कि अगर एक आधा इवेंट अगर उनका करा लेते हैं या टीमें आ जाती हैं। एक तो ये बताइए, दूसरा आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आए हैं, होता ये है कि एसोसिएशन जो यहाँ पे मुझे एसोसिएशन का आदमी कोई नज़र नहीं आ रहा, जिनके पास बच्चे होते हैं, जिनके पास क्लब होती है, क्या उनसे कोऑर्डिनेट आप लोगों ने? जबकि दूसरी जानिब आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के अहदेदारान लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराह रास्त ले चलते हैं। जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के इल्म में हैं कि हुकूमत पंजाब ने तवानाई के बहरान की वजह बताते हुए दुकानों और मार्केटों को 10 बजे बंद करने का हुक्म दे रखा है, जबकि हाई कोर्ट की तरफ से भी स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से 10 बजे का हुक्म दे रखा है, जिस पर अमल दरामद भी हो रहा है। 2 दिन पहले सिर्फ बेकरीज़ को रात 12 बजे खोलने की इजाज़त दी गई है। ताजर बरादरी किसी भी मुल्क को चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और मुल्क पर आई हर मुश्किल घड़ी में हुकूमत के शाना बशाना खड़ी होती है, क्योंकि ताजरों के कारोबार में हायल रुकावटों को दूर करके ही मैशियत को मुस्तहकम किया जा सकता है। ये बात हम सब जानते हैं। मैशियत के हवाले से पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में यही फार्मूला है कि मैशियत मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा, लेकिन उसमें कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ासकर मीडियम और जो छोटे हम ताजर हैं, कि हमारे कुछ मसाइल ऐसे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं कि हम समझते हैं कि उसमें हुकूमत को नोटिस लेने की ज़रूरत है। अब जैसे 2-3 साल पहले कोरोना भी आया तो हुकूमत ने जो कुर्बानी है वो मार्केटों से और मीडियम जो कारोबारी हजरात हैं और ताजर हजरात हैं उनसे मांगी। उसमें उन्होंने टाइम की पाबंदी हम पे लगा दी, कुछ छुट्टियों की पाबंदी हम पे लगा दी, लेकिन इंडस्ट्री ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। और अभी आपको बताएं, रिश्वत लेकर भर्तियों और सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जे का इल्ज़ाम। PTI के साबिक MPA नईम इब्राहिम और अहमद शाह खग्गा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी, तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर पंजाब असम्बली नईम इब्राहिम और उनके साथ साथ पीर अहमद शाह खग्गा के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब में बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के साबिक MPA नईम इब्राहिम ने महकमा माल के अमला की मिली भगत से 17 मरले सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जा किया है, जिस पर साबिक MPA नईम इब्राहिम ने जो है 17 मरले सरकारी अराजी पर अपना डेरा तामीर किया है, और इसमें जो है 1.5 करोड़ रुपए मालियत के ये 17 मरले सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जा है। और इसके साथ साथ जो है ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक MPA अहमद शाह खग्गा ने जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिश्वत लेकर भर्तियाँ की, और इनमें पीर अहमद शाह खग्गा ने जो है 7 लाख रुपए फी असामी लेकर ये मुख्तलिफ अफराद को भर्ती करवाया गया। और इसमें ज़राए के मुताबिक साबिक MPA ने महकमा तालीम के अफसरान की मिली मदद से मुकर्ररा उम्र की हद से ज़ायद उम्र के अफराद को भी भर्ती करवाया। जी शुक्रिया शबीर आपका।
इमरान खान के खौफ से पीडीएम दिमागी तवाज़न खो चुकी है। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि हुकूमत दहशतगर्दों से लड़ने की बजाय अदली और आवाम से लड़ रही है। चीफ जस्टिस सुरखरू होंगे, आइन और आवाम की फतह होगी। चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर अब्दुल वहीद से मुलाकात में गुफ्तगू। इस मुलाकात में मजीद क्या गुफ्तगू की गई, जानेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ इलाही से जो है वो वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के जो हेड डॉक्टर हैं अब्दुल वहीद, उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर परवेज़ इलाही ने एक तरफ पीडीएम की क़यादत को खासे तनकीद बनाया और दूसरी तरफ निगरान हुकूमत को वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के फंड मुबैना तौर पर रोकने और तनकीद का बनाया। परवेज़ इलाही का कहना था कि इमरान खान के खौफ से पीडीएम दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है और हुकूमत दहशतगर्दों से लड़ने की बजाय अदलिया और आवाम से लड़ रही है। इंशाअल्लाह फतह आइन और आवाम की होगी। चीफ जस्टिस सुरखरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वाशिंगटन में कराते खात्मे मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी टीम का लाहौर स्टेट रोड पर 2 जाली जूस बनाने वाले यूनिट पर छापा। 5737 लीटर मिलावटी मशरूबात तल्फ। यूनिट मालिकान को भारी जुर्माना आयद। यूनिट्स में केमिकल की मिलावट करके गैर मयारी मशरूबात तैयार किए जा रहे थे। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौरिये मुजरे से जूस पीने से बच चुके हैं और आपको बताएं कि 5737 लीटर मिलावटी मशरूबात तल्फ कर दिए गए हैं। यूनिट मालिकान के खिलाफ भारी जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। यूनिट्स में केमिकल की मिलावट करके गैर मयारी मशरूबात तैयार किए जा रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में इजलास। पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी का गदागरी की रोकथाम के लिए मुहिम शुरू करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी की गदागरी की रोकथाम के लिए पुलिस को इंतजामिया की मुआवनत की हिदायत। डेप्यूटी आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से अहम हुक्म जारी किया गया है। सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ है। पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाए। चीफ सेक्रेटरी का गदागरी की रोकथाम के लिए मुहिम शुरू करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी की गदागरी की रोकथाम के लिए पुलिस को इंतजामिया की मुआवनत की हिदायत। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश के इदाद-ओ-शुमार जारी। रात 12:55 से दोपहर 1:40 तक शहर में बारिश के 3 स्पेल बरस चुके। आपको बताएं जो कि शहर में सबसे ज़्यादा बारिश जोहर टाउन के इलाके में 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा और कौन कौन से इलाकों में बारिश हुई और कितने मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई? ज़ैन से राबता मुनक़ता हो गया है। राबता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि शहर में होने वाली बारिश के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। रात 12:55 से दोपहर 1:40 तक शहर में बारिश के 3 स्पेल बरस चुके। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश जोहर टाउन के इलाका में 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कौन से इलाके में कितनी बारिश हुई। इस हवाले से चार्ट भी जारी कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा बारिश जोहर टाउन में 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। डॉलर रेट में ₹1.25 का इजाफा। इंटरबैंक डॉलर रेट 285 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये तक फरोख्त। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया और डॉलर की कदर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैंकारी औकात के दौरान तकरीबन ₹1.25 तक डॉलर महंगा हुआ और जिसके बाद 285 रुपए की हद एक मरतबा फिर डॉलर अबूर कर गया। इससे पहले भी 3 मार्च को डॉलर की कदर में इसी किस्म का इजाफा देखा गया था। 285 रुपए की शरह तबादला से ऊपर डॉलर गया था। आज भी जिस वक्त बैंकारी औकात के दौरान डॉलर बंद हुआ तो उसका रेट 285 रुपए 4 पैसे रिकॉर्ड किया गया, जबकि ओपन मार्केट में भी तेजी देखी गई। ओपन मार्केट में भी तकरीबन ₹1.50 तक इजाफा देखा गया। और जी शुक्रिया जाहिद आपका। यूटिलिटी स्टोर्स पर कम नरख में आटा खरीदना मुश्किल हो गया। सप्लाई मुतासर होने से शहरी परेशान। आवाम यूटिलिटी स्टोर से मायूस लौटने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता कई हफ्ते से आटा अदम दस्तयाबी की शिकायत। शालीमार यूटिलिटी स्टोर पर भी शहरी 10 किलो आटे के थैले के लिए अखबार। आटे के हसूल के लिए शहरी एक से दूसरे यूटिलिटी स्टोर की जानिब चक्कर लगाने पर मजबूर। हुकूमत ने ऐलान कर दिया लेकिन यूटिलिटी स्टोर पे तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। जब से रोजे शुरू हुए फ्री आटे का, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है। जब भी आते हैं धक्के खा के चले जाते हैं। महीने से ज्यादा हो गया हमें आटा नहीं मिल रहा।
ना घी और ना चीनी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। अब आप सोचें हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे। दूसरी जानिब शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी के लिए सारिफीन को 2 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफीन के लिए आटा थैला 400, घी 300 रुपए किलो और चीनी 70 रुपए किलो में मिल रही है। आम सारिफ के लिए आटे का थैला 648, घी 490 और चीनी 91 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों ने इस बात का शुक्रिया अदा किया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कम से कम घी, चावल और दालें तो दस्तयाब हैं। महंगाई के साथ बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा, शहर के अड्डों पर बैठे मजबूर और लाचार मजदूर दिहाड़ी लगने के मुंतज़िर। मजदूर कहते हैं हुक्मरान सिर्फ अपनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं, हम महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी से मर रहे हैं। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी का भी चैलेंज। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों का जीना मुश्किल हो गया। तामीराती काम न होने से अड्डों पर सैकड़ों मजदूर दिहाड़ी लगने के मुंतज़िर। सारा दिन बगैर मजदूरी खाली हाथ घरों को वापस जाने पर मजबूर। मजदूरों का कहना है कि कई दिन से बेरोजगार बैठे हैं, दिहाड़ी नहीं लग रही। मकान का किराया कैसे अदा करें, बच्चों का पेट कैसे पालें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हुक्मरानों को सिर्फ अपनी सीटों की पड़ी है। महंगाई वाली अखीर हो गई जी, तो ना कोई कारोबार ना कोई काम कਰਾਉਂਦਾ। मजदूर ਸਵੇਰ सुबह आते शाम ਨੂੰ चले जाते वापस। इसे तरह ही की हो गया कि महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, 4 ਲੱਗ ਗਈਆਂ, 5 ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ। काम की सूरत हाल बहुत बुरी है जनाब। तकरीबन 2 महीने हो गए हमें आए हुए गाँव से यहाँ पे। 2 महीने के अंदर हमने 7 दिन काम किया है। हम 7 दिन के पैसे जो खुद रखेंगे या घर भेजेंगे, क्या करेंगे उसका। हुकूमत की जानिब से मजदूर की कम से कम माहाना उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर करने का फैसला अपनी जगह, लेकिन मजदूरी न मिलने से उनकी मुआशी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से मॉडल बाज़ारों में स्पेशल रमज़ान पैकेज मुतारिफ करवाया गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में 10 से 20% रियायत दी गई। शहरियों को रिलीफ मिल रहा है या नहीं, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से, जो कि इस वक्त वो मौजूद हैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार में। जी ज़ैन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप मॉडल बाज़ार में, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में स्पेशल रमज़ान पैकेज जो है वो लगाया गया है, जिसके मुताबिक सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो इधर मॉडल बाज़ार में सब्ज़ियों और फलों की जो कीमतें हैं वो 10 से 20% डिस्काउंट पर जो हैं वो दी जा रही हैं। अगर क्वालिटी की बात की जाए तो देखने में तो सब्ज़ियों और फलों की जो क्वालिटी की है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये देखें, क्वालिटी की जो बात करें, क्वालिटी तो बिल्कुल अच्छी और फ्रेश सब्ज़ी लगी हुई है, लेकिन बाहर से दुकानों की निस्बत ये इधर 10, 20, 15 रुपये लेस है किलो के मार्जिन पर। तो हुकूमत की तरफ से जो इन्होंने दिया है, जो कुछ भी वो तो जो भी आपके सामने ही है, लेकिन सब्ज़ी भी अच्छी है, फल भी अच्छा है। और शहरी से बात करते हैं। सर आप बताइएगा, आपने भी खरीदारी की है, कैसी लगी, क्या म्यारी हैं और क्या कीमतें भी कम हैं? सब्ज़ी तो ठीक है और बाज़ार से थोड़ा फ़र्क है, तो मगर महंगी बहुत है। आम इंसान जो है ना, वो सब्ज़ी भी खाने के लिए ना, उसके लिए बड़ी मुश्किल है। जी बिल्कुल, आपने इन शहरी की बात सुनी, इनका भी यही कहना था कि फ़र्क तो है बाहर सरकारी की रेट लिस्ट से, लेकिन जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी मेयारी हैं, लेकिन कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि एक गरीब आदमी की ये सब्ज़ी और जो फल है उनकी कुव्वत ख़रीद से वो दूर हो चुकी हुई है। जी शुक्रिया आपका। माह सियाम में गिरा फरोशी, डीसी की हिदायत पर मार्केटों की निशानदही मुकम्मल। डीसी लाहौर का 18 ऑफिसर्स पर मुश्तमिल स्पेशल टास्क फोर्स को क्रैकडाउन का हुक्म जारी। किसी भी मार्केट में गिराम फरोशी की शिकायत पर मुतल्लिका ऑफिसर जिम्मेदार होगा। इमरान अकबर से डिटेल्स जानेंगे। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में ग्राम फरोशी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर क्रिटिकल मार्केट्स की निशानदही मुकम्मल कर ली गई है। डीसी लाहौर ने 18 अफसरान पर मुश्तमिल क्रिटिकल मार्केट्स टास्क फोर्स बना दी है, क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के अलावा क्रिटिकल मार्केट्स की निगरानी स्पेशल टास्क फोर्स भी करेगी। मजिस्ट्रेट सैफुर रहमान को मून मार्केट, गुलशन रावी, हकीमा वाला बाजार, सांदा और जो है शाह मलिक मुनीर रोड की निगरानी करेंगे। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि मजिस्ट्रेट शबीर मीर टेम्पल रोड, पुराना मजंग, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर IPMW मुनसर गुजर ठोकर न्याज बेग नस्त मॉडल बाजार की मॉनिटरिंग करेंगे। इसी तरह मेन बाजार, ग्रीन टाउन, नेशनल कॉलोनी बाजार और कच्चा जे रोड पर मजिस्ट्रेट फरहत अब्बास प्राइस अंजाम देंगे, जबकि GT रोड, बंडाला रोड
اور شادرہ میں مجسٹریٹ ناصر محمود، جبکہ قلعہ لکشمن سنگھ میں مجسٹریٹ ناصر محمود نگرانی کریں گے۔ آرے بازار کینٹ بیدیا روڈ پر مجسٹریٹ راؤ نعمت علی کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، جبکہ نشتر کالونی مارکیٹ اور علی پاک نادر آباد میں مجسٹریٹ محمد علی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ مجسٹریٹ شلوک انور دھرمپورہ بازار، صدر بازار کینٹ عمران، شہریوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب افسران کی آنیاں جانیاں ہیں، اس سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملتا، کیا واقعی ایسا ہے یا ریلیف مل رہا ہے عوام کو؟ جی مجسٹریٹ جی ایک فور دا ظفر موج ہے، اور یہ تو ہمیشہ ہم نے نشاندہی بھی کی ہے اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے کہ جو گرام فروشی ہے وہ یوں کی توں ہے، اور جو مہنگائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرام فروشی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہیں اور پریشان ہیں۔ مگر موجودہ صورتحال میں جو مجسٹریٹس ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں، ان کو چیک کیا جاتا ہے اور ان کو روزانہ 40 سے 50 انسپیکشن کرنے کا کہا جاتا ہے، جو کہ وہ نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں برطانوی ہائی کمیشن کے وفد کی زمان پارک آمد، وفد عمران خان سے ملاقات کرے گا۔ برطانوی ہائی کمیشن کا وفد عمران خان سے ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال بھی کرے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ برطانوی ہائی کمیشن کی سنت طریقے کے ساتھ عمران خان سے ملاقات جاری ہے، جس میں پاکستان اور برطانیہ کے مابین تعلقات اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے جو پاکستان کے حالات ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی اپنی جدوجہد کے حوالے سے آگاہ کیا ہے، اور برطانوی ہائی کمیشن کی اس ملاقات کے اختتام پر امید ہے کہ اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا، جس میں جو صورتحال جو دونوں کے درمیان ڈسکس ہوئی اس اعلامیہ میں اس کی عکاسی کی جائے گی۔ جی شکریہ لیاقت آپ کا۔ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون لاہور کا مشاورتی اجلاس، پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کے اجلاس کی صدارت مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر نے کی۔ مسلم لیگ نون لاہور کے اجلاس میں لاہور کے ٹکٹ ہولڈرز شریک ہوئے، موجودہ ملکی سیاسی اور آئینی صورتحال سمیت تنظیم سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ تفصیلات جانیں گے شبیر حیدر سے۔ جی شبیر، اجلاس کا احوال بتائیے گا۔ جی ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون لاہور کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں مسلم لیگ نون لاہور کے اجلاس میں لاہور کے ٹکٹ ہولڈر نے شرکت کی، اور ان میں پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کے اجلاس کی صدارت مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر نے کی۔ اجلاس میں جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر، نون لیگ خواتین ونگ لاہور سعدیہ تیمور موجود تھیں، اور اجلاس میں موجودہ ملکی سیاسی اور عینی صورتحال سمیت تنظیم سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، اور اجلاس میں پارٹی ٹکٹ ہولڈر کی جانب سے پارٹی صدر کو تمام مسائل کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا، اور آئندہ عام انتخابات میں ٹکٹوں کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی، اور الیکشن پورے ملک میں ایک روز ہونا چاہیے۔ سابق اراکین کی جانب سے اس بات پر اتفاق کیا گیا، اور اجلاس میں پارٹی کے ذیلی اور ونگ کو فعال کرنے پر اتفاق کیا گیا، اور مسلم لیگ نون خواتین ونگ، یوتھ ونگ، لیبر ونگ، پروفیشنل ونگ سمیت تمام ونگز کو جلد از جلد فعال کیا جائے گا۔ پھر اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے، اور اجلاس کے شرکاء نے چیف آرگنائزر مریم نواز کے اعزاز میں پارٹی کنونشن کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ شبیر بتائیے گا، اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ مریم نواز اس کو لیڈ کریں گی، صدارت کریں گی، پھر خبر آئی کہ وہ لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو گئی ہیں، حمزہ شہباز کے حوالے سے کہا گیا، اور اب صدارت جو ہے سیف الملوک کھوکھر نے کی۔ کیا یہ فیصلہ پہلے سے تھا یا فیصلہ بعد میں کیا گیا؟ جی بالکل، پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کی صدارت جو ہے وہ مریم نواز خود کریں گی، مگر کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ جو ہے وہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ مریم نواز جو ہے ماڈل ٹاؤن پہنچ گئی ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی اس کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ میسج آیا کہ جی مریم نواز جو ہیں وہ ایمرجنسی بنیاد پر لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس کی صدارت کریں گے۔ شکریہ شبیر۔